Good afternoon to everyone. In today's lecture, we will be starting with the new chapter, that is final accounts of manufacturing concern. Now, this final account is new, not a new chapter to all of you. You all have done your final accounts from your FYJC junior college, first year junior college, and in 12th also you had, in SYJC also you had final accounts, and till we do final account, this see then the till we do accounts, we have this chapter final accounts. Now you have done sole trading final accounts, you have done partnership final account. Now today we are in this chapter, we are starting final accounts of manufacturing concern. From the name you understand, manufacturing concern means a business which is conducting manufacturing production business. So here also here one important thing we have to understand is the final account of which we are going to prepare is a manufacturing concern, means it is related, it does production or manufacturing. Creation of a product is done by this concern, by this business, but this business is a small scale, means it is a sole trading concern. मतलब यहाँ पे भी जो हम फाइनल अकाउंट करने वाले हैं, हम फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए करने वाले. So in this chapter, a revision of what you had done in your 11th standard will take place, because 11th standard में आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न जहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है उसका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया था, तो उसका ही रिवीजन, उससे ही ये कनेक्टेड है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. So now final account we do to finalize the accounts. And normally देखो, whenever there is a business is done with the intention to make profit, correct? Business is done for the intention to make profit, but is there 100% surety that you will make only profit? No, right? When you do a business, you may incur loss also. It is not fixed that if you do a business, you will make a profit only. There may be a loss also. And tell me, you have, suppose for example, you started a business today, and can you come into a conclusion that on the same day you can land into a conclusion that you have made profits? See, it is one day is not a correct period to judge whether the business is making a profit or a loss. भले ही first day में आपको अच्छा खासा आपका sales हुआ हो, but that cannot land into a conclusion that you are making a profit, correct? Is it possible to decide on the profit loss factor on a week time? में एक वीक बिजनेस करके आप ये कंक्लूजन में आ सकते हो कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? आप बोल रहे हो नहीं, एक वीक से तो प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं बिजनेस बंद कर दूंगी या कर दूंगा. कैन यू रीच इनटू दैट कंक्लूजन? नो. सो what in accounts, what in business, what is the minimum period to judge whether the business is making a profit or a loss? It is a period of a year, 12 months. तो 12 months में ही हम accounts को finalize करते हैं and decide करते हैं whether the business has made a profit or a loss, and that we do by preparing the final accounts. We finalize our accounts with the intention to decide whether the business is making a profit or a loss. And also in the final account, we can, with judging the performance of the business, we can also judge the financial position of the business. Now, what do you mean by financial position? Means, suppose you are doing a particular line of business, you will not be a only person doing that line of business. Suppose you are manufacturing a cloth brand. आप एक क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हो, आपका उसका बिजनेस है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का, तो क्या आपका अकेला एक
क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा? विल इट बी अ सिंगल बिजनेस हु इज मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ? ऐसे और भी नंबर ऑफ बिजनेसेस रहेंगे जो आप सिमिलर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का सिमिलर बिजनेस है क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करने का. तो with comparison to the other concerns doing a similar business, you can measure your position in the market. That is, आप बाकी लोगों से आपका क्या standing है in the business, that also we can judge with the help of final accounts. So in the final accounts, now let us come to the next slide. So what all things we will be preparing in this chapter? हम फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो आप लोगों को पता है हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. बट इन दिस chapter, in the final accounts of manufacturing concern, one additional account we will be preparing, and that is known as the manufacturing account. So, हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे चार चीजें प्रिपेयर करेंगे. 3 ledger accounts and 1 statement which is balance sheet. So manufacturing account you all will be preparing, trading account, profit and loss account and balance sheet. Now what you do in this manufacturing account? Manufacturing account में जो भी factory related expenses है and incomes है हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे. जो पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते थे, अभी आप वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे. इन द नेम, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है. मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होता है. द प्लेस दैट द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज डन इज कॉल्ड एज अ फैक्ट्री. सो यहाँ पे हम फैक्ट्री रिलेटेड सारे इन एक्सपेंसेस को डाल देंगे. इसका फॉर्मेट अभी नेक्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग. देखो ट्रेडिंग अभी है ना, तो ऐसा नहीं हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रिपेयर करते लिखते थे वो हम अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे. बट स्टिल यू कैन सी दैट ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो हैज टू बी प्रिपेयर्ड. नाउ आई टोल्ड यू कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे वो हम अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे. बट स्टिल देन व्हाट इज द नेसेसिटी टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट? इस ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीटली नहीं बनाना, ऐसा नहीं है. There are some things which has to be recorded in the trading account. वो क्या है? I will let you know now when we will be doing the format. But profit and loss account and balance sheet, इसका फॉर्मेट सेम रहने वाला है. इसके फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं है. There is no change in the like how we used to prepare profit and loss account and balance sheet. That will remain, that will be done in the same manner. तो इसके लिए what I will do now, तो profit and loss and balance sheet तो हम उसका फॉर्मेट में नहीं एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज वो जैसे पहले करते थे सेम वे हम करने वाले. बट नया चीज क्या है हमारे लिए? नया चीज है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो इसका फॉर्मेट आई विल बी डिस्कसिंग विथ ऑल ऑफ यू. So let us now start. I will start with the format of the manufacturing account. So now what we will do, as I told you, we will start with the format of manufacturing account. How to prepare the manufacturing account? As I told you, it is also a ledger account. So it will have 2 sides, debit side and credit side. So debit, and this is also a nominal account, and I hope you all know the rule of nominal account. Debit all expenses and losses and credit all incomes and gain. So हम डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का. लेकिन बताओ मुझे, मैन्युफैक्चर कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए व्हाट डू यू रिक्वायर? टू मैन्युफैक्चर एनी पर्टिकुलर थिंग, कुछ भी मैन्युफैक्चर करना हो तो हमें क्या रिक्वायर होता है? द मेन थिंग व्हाट वी रिक्वायर इज रॉ मटेरियल. See, the main thing what we require is raw material. So I will start with raw material consumed. I will start with raw material consumed. Now what do you mean by raw material consumed? Raw material is the material which you will use in the
machine used in the business, and you will convert it into finished goods. Finished goods is the product which is ready to sell. सो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है जो आप मार्केट में सेल कर सकते हो. यू आर हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आपका फैक्ट्री है. सो यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में देखो मशीनरी तो यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज मशीनरी तो बैलेंस शीट में आता है. करेक्ट, मशीनरी कम्स इन द बैलेंस शीट. यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में लिखना है. व्हाट वी हैव टू राइट हियर, we have to write here about manufacturing account, trading account, profit and loss account. यहाँ पे सब हम incomes and expenses record करते हैं. तो सबसे पहला जो expense है वो है raw material consumed. That is how much raw material has been used in the business for the particular year. के फाइनल अकाउंट्स मींस एक ईयर के अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं. तो पूरे साल में हाउ मच मटेरियल हैज बीन कंज्यूम्ड. कंज्यूम्ड मींस यूज्ड. हाउ मच बिजनेस मटेरियल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस. तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक. मतलब ये क्या है, लास्ट ईयर जो भी मटेरियल बचा होगा वो हम इस साल यूज करेंगे प्रोडक्शन में. करेक्ट, लास्ट ईयर में जो भी मटेरियल unused था that we will use in the current year. So last year का material, last year का closing stock of material becomes the opening stock of material of the current year. So this is unused raw material of the previous year. Previous year का closing stock becomes the opening stock of the current year. This will be given in the question. Question में क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, वहां से हम पोस्टिंग करेंगे. So opening stock of raw material will come here. But tell me, क्या ओपनिंग स्टॉक मीन्स लास्ट ईयर का अनयूज्ड मटेरियल फुल ईयर चल सकता है? Is it possible to use the last year left out materials for the full year, or you have to do some purchases? See, last year का opening stock, जैसे for example, if your mom looks after the groceries in the house, if लास्ट मंथ का राइस है, शुगर है, वो नेक्स्ट मंथ में कुछ दिन तो चलेगा लेकिन पूरा महीना चलेगा, पूरा साल. बिकॉज यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर. अगर मंथली परचेसेस आर डन, सपोज द ग्रोसरीज आर परचेज ऑन अ मंथली बेसिस, एंड फिर भी गलती से थोड़ा बहुत ग्रोसरीज बचा है लास्ट मंथ का करंट मंथ में, तो आप बोलोगे उसको ही फुल मंथ चलाओ. तो इज इट पॉसिबल? बिकॉज द परचेसेस वाज डन on a monthly basis if you are talking about the groceries. Same way here we are talking about the business. So the material which was the unused material of the previous year is not sufficient for the whole year. So what we'll have to do, we'll have to do purchases. So purchases will be given in the question. We only have to post it here. देखो final accounts में आपको कुछ भी calculate, मतलब normally trial balance में जो दिया रहता है आपको वो posting करना है. So here also यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा purchases of raw material, RM. I'm writing it in short form, RM. RM means raw material. So ये हमने यहाँ पे लिखा, ये हमने यहाँ पे लिखा. इसके बाद देखो मटेरियल परचेज करते वक्त आपको जो भी खर्चा होता है, फॉर एग्जाम्पल कैरेज, फॉर एग्जाम्पल आपको कैरेज इनवर्ड हुआ. व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? इट इज द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग परचेस ऑफ गुड्स. तो गुड्स परचेस करते वक्त, रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त जो भी दूसरा खर्चा होगा दैट ऑल्सो हैज टू बी added in the raw material cost. So raw material जो पूरे साल यूज हुआ है उसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल आएगा. Yes, raw material you may also call RM. RM means short form for raw material. So कैरेज इनवर्ड के बाद व्हाट एल्स, कुछ भी दूसरा दिया रहेगा रिलेटेड लाइक कैरेज इनवर्ड. अगर ऑक्ट्रॉय ऑन कैरेज, ऑक्ट्रॉय ऑन मटेरियल परचेज्ड, या फ्रेट चार्जेस ऑन मटेरियल परचेज, ऐसे कुछ भी दिया. अगर हम बाहर से ले रहे, कस्टम ड्यूटी, कस्टम चार्जेस ऑन मटेरियल,
कस्टम ड्यूटीज, मटेरियल परचेज करते हो जो कस्टम ड्यूटीज लगता है, और डॉक में रखने का जो चार्जेस है, तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दिया है तो ये मटेरियल से रिलेटेड है, देन इट विल कम हियर, बिकॉज रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है ये। सो ये सबको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, एवरी एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें से लेस करेंगे परचेस रिटर्न्स। क्या लेस करेंगे, परचेस रिटर्न्स ऑफ रॉ मटेरियल। इफ यू वांट आई विल राइट इन द ब्रैकेट परचेस रिटर्न रॉ मटेरियल, ये हमने माइनस कर दिया। व्हाट इज परचेस रिटर्न, हमने परचेस किया था मटेरियल बट दिस इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड, सो हमने इसे रिटर्न कर दिया, so that will come here. And what else, one above, हाँ now it is right। अभी क्या करेंगे, इसके अलावा क्या लेस करेंगे, इसके अलावा क्या लेस करेंगे, इसके अलावा लेस करेंगे, देखो हमने इतना मटेरियल पूरे ईयर में परचेज किया, बट अगर पूरा मटेरियल यूज्ड नहीं हुआ, देयर इज सम अनयूज्ड मटेरियल इन द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट इज इट कॉल्ड, अनयूज्ड मटेरियल इन द एंड ऑफ द ईयर। देखो I have opening stock which is the last year material, then I have done purchases during the year, but if there is some material which is left unused in the current year, that we have to less, उसको माइनस करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल हैज नॉट बीन यूज्ड इन द करंट ईयर, ये रॉ मटेरियल करंट ईयर में यूज नहीं हुआ, तो ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये माइनस करने पे हमें मिलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वी गेट अवर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके अलावा ऑल द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में क्या हो सकता है, वेजेस हो सकता है, वर्कर्स को जो सैलरी देते हैं, इसके अलावा जो भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, all the direct expenses which are related to factory, all direct expenses related to factory, direct expenses related to factory will come here। जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रॉयल्टी और related to manufacturing, related to factory या manufacturing। Now when do we pay the royalty, हम रॉयल्टी कब देते हैं, हम रॉयल्टी देते हैं सपोज कोई स्पेशल टाइप ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड है कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मशीनरी विच इज देयर इन सब, विच इज बीन इन्वेंटेड बाय सम अदर कंपनी, तो वो हम यूज करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम या कोई देयर इज सम पेटेंट्स व्हिच वी आर यूजिंग एंड वो किसी और को बिलोंग करता है, द इन्वेंशन राइट इज विद समवन एल्स, तो उसको हमें रॉयल्टी देना पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग दैट टेक्निक। सो द रॉयल्टी पेड ऑन पेटेंट्स for the manufacturing of the goods will come here। And if there is any higher charges, there is any higher charges for special machinery, higher charges of special machinery, there is some special kind of machinery which we are using to produce something, तो वो हम उसको हम हायर कर रहे, खरीद, that we are only using it और बाद में हम वापस कर देंगे, तो उसका जो भी हायर चार्जेस होगा दैट वी विल राइट हियर। इसके अलावा अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी रहेगा सच एज, जैसे इसके अलावा व्हाट इज दैट, इसके अलावा व्हाट अदर टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, व्हाट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस लाइक फैक्ट्री इंश्योरेंस, समवन सेड factory insurance,
फैक्ट्री इंश्योरेंस यहाँ पे आएगा, फैक्ट्री का रेंट है तो यहाँ पे आएगा फैक्ट्री रेंट विल कम हियर। अगर फैक्ट्री के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज हो रहा है देन इट विल कम हियर। So all expenses which are related to factory will come here. Salary of supervisor, salary of factory supervisor, salary of factory supervisor. Normally salary हम कहाँ लिखते हैं? Salary we write in the P&L account, but this is factory supervisor. Power and fuel, power and fuel is there, power and fuel. तो यहाँ पे लिखेंगे power and fuel. All expenses which are wages we have already written. So works manager salary also will come here, correct? Then whatever which is related to our factory will come here. Yes, yeah, coal, gas, fuel, oil also will come here. Coal, gas, whatever is there, fuel, oil related to factory hai, it will come here. So all the expenses which are related to factory will come here. Works manager salary like supervisor, work manager, ये one at the same thing. अगर work manager दिया तो ऐसे लिखेंगे. So that is also done. Then very important which we should not forget is to depreciation and repairs, depreciation and repairs of factory asset, repairs of factory assets. Now normally इससे पहले जो भी depreciation होता था हम profit and loss account में show करते थे. Now what do you mean by depreciation? Depreciation means reduction in the value of the asset due to usage. हम जो भी assets को use करते हैं तो देखो जो purchase asset for one price, lifelong will it remain for the same price, उसका value उतना ही रहेगा. ये use के वजह से या कोई दूसरे रीजन के वजह से उसका वैल्यू कम होते रहेगा. दैट रिडक्शन इन द वैल्यू इज नोन एज डेप्रिसिएशन. नहीं तो डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे, बट हियर जो भी फैक्ट्री असेट्स का डेप्रिसिएशन या रिपेयर्स है दैट विल कम हियर. फैक्ट्री असेट, फैक्ट्री में कौन सा असेट यूज होता है? प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग. तो कोई भी फैक्ट्री रिलेटेड असेट है उसका डेप्रिसिएशन विल कम हियर. गॉट इट? सो इसके बाद वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज इट? यहाँ पे देखो when the material is used in the production, हम मटेरियल को जब यूज करते प्रोडक्शन में लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, इन बिटवीन द ईयर हमें फाइनल अकाउंट्स करना है. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ये किसको बोलते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस? इट इज नोन एज इनकम्प्लीट प्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय WIP? इट इज इनकम्प्लीट प्रोडक्शन. Incomplete production means that we have used the material but it is not completed, it is not converted, it is not ready for sale. अभी तक material जो है now अभी हमने उसे production में use कर दिया but it is not ready to be sold, it is not finished goods, it is not finished yet, its production is incomplete. तो ना उसको material बोल सकते हैं ना उसे finished goods बोल के sell कर सकते हैं. So incomplete, it is incomplete, so उसे हम बोलते वर्क इन प्रोग्रेस. तो उसका WIP ओपनिंग स्टॉक विल कम हियर and by in this side what will come? By closing stock of work in progress, closing stock of work in progress. So closing stock will come here. And one more thing, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है विच इज नोन एज बाय सेल ऑफ स्क्रैप.
ना व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैप? देखो जब फैक्ट्री में वर्कर्स सब मिलके काम करते हैं तो देयर इज अ चांस ऑफ वेस्टेज। सो देखो जैसे कोई भी काम जब मिलके इन द फैक्ट्री व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन, यू कैन नॉट गारंटी दैट देयर विल बी नो वेस्टेज। वेस्टेज होने का पूरा चांसेस है। तो वेस्टेज जब होता है तो वो वेस्टेज को हम थ्रो नहीं करते, वी डू नॉट थ्रो इट अवे बट वी सेल द वेस्टेज। तो सेल करते हैं तो हमें कुछ इनकम आता है। व्हेन वी सेल अवर वेस्टेज, हम फेंक नहीं देते हमारे वेस्टेज को। फैक्ट्री में दैट इज अ बिग लॉट ऑफ वेस्टेज, उसको सेल किया जाता है एंड सेल करके इनकम आता है। तो दैट इज द इनकम। सो हमने क्रेडिट साइड में लिखाया है बाय सेल ऑफ स्क्रैप। एंड देन हम क्या करेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बंद करेंगे। वी विल क्लोज दिस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यू विल ऑलवेज सी दैट द डेबिट साइड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज हैवी। आप क्या देखोगे कि जो डेबिट साइड है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, हमेशा यू विल सी द डेबिट साइड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज हैवी। विदाउट थिंकिंग डेबिट साइड में सब एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड में क्या है, देयर इज ओनली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP and that is sale of scrap. So you'll always find wastage can never be more than production cost. अगर वेस्टेज आपका प्रोडक्शन के खर्चे से ज्यादा है, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। तो सेल ऑफ स्क्रैप विल बी अ स्मॉल अमाउंट। सो जो भी हमारा हमेशा देखेंगे कि डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विल बी हैवी एंड जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाय, इसको हम ट्रांसफर करते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। इन ब्रैकेट आई विल राइट दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन transferred. This is what? This is the cost of production. What is this balance जो हमें मिल रहा है? ये जो हमें बैलेंस मिल रहा है, ये बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, ये बैलेंस को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच वी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। So this is the cost of production which we transfer to the trading account. Production करने का cost means जो भी हमने manufacture किया है ये उसका cost है, cost of production. So with this manufacturing account is done. Now let us, as I told you, एक और format में आपको बताऊंगी, that is trading account, format of trading account. जो बच गया अब वो सब trading account में आएगा। Format of trading account, format of trading account. So let me insert the tables, column चाहिए ना हमें। So 2 column for amount, 2 column for amount. So let me write particulars, rupees, particulars, rupees and rupees. Let us adjust it little bit क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मेट है। So we will only be writing XXX because ये सब नहीं है, it is just amount भी लिख सकते, rupees भी लिख सकते, up to you what you want to write. No compulsion कि rupees ही लिखना, you can also write amount. So this I will take in the center. So यहाँ पे दो चीज होगा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, करेक्ट। यहाँ पे दो चीज होगा, तो डेबिट साइड होगा एंड दिस विल बी द क्रेडिट साइड। सो दिस इज डन। आई वांट टू जस्ट रिमूव द गैप विच इज देयर बिटवीन, रिमूव द गैप। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। सो देखो हमने बात किया रॉ मटेरियल का, हमने बात किया वर्क इन प्रोग्रेस का, बट व्हाट इज रिमेनिंग स्टिल नाउ, व्हाट इज रिमेनिंग, ओपनिंग स्टॉक अभी भी यहाँ पे लिखेंगे, बट दिस इज फिनिश्ड गुड्स।
जो कि रेडी है सेल के लिए, फिनिश्ड गुड्स, दिस इज व्हाट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. व्हाट इज फिनिश्ड गुड्स? इट इज रेडी टू बी सोल्ड. तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो लिखेंगे, इट विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. उसके बाद वी मे ऑल्सो राइट टू परचेसेस, बट ये परचेस किसका है? इट इज परचेसेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स. कभी बिजनेस में हम प्रोडक्शन तो करते हैं, बट अर्जेंट बेसिस में हमें ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स खरीदना पड़ा. नॉर्मली 99% टाइम्स ये परचेसेस इधर आएगा ही नहीं, बिकॉज हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें डायरेक्टली फिनिश गुड्स परचेस करने का क्या जरूरत है? When we are purchasing the material and converting it into finished goods, then why will we directly purchase the finished product? तो 99% टाइम ये परचेसेस finished goods का it will not be there in the question, but in question suppose in a question both it is also given purchase of finished goods, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा if any purchase of finished goods is done it will come here. और इसके बाद देखो यहाँ पे बाई ट्रेडिंग अकाउंट करके लिखा है, बाई ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आज हो जाएगा? ये बाई ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट में इट विल बी टू, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? टू manufacturing account. It is coming from the manufacturing account, and bracket में we can write cost of production transferred, cost of production transferred. ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे हमने बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखा, और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से अकाउंट का नाम लिखेंगे? नेम ऑफ द ऑपोजिट साइड. बाई बिकम्स टू, बाई बिकम्स टू, और नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का नाम लिख दिया. और यहाँ पे क्या आएगा? बाई सेल्स. अभी तक हमने सेल्स के बारे में लिखा ही नहीं, बट क्या सेल करते हैं? फिनिश गुड्स सेल करते हैं. इफ देयर इज एनी फिनिश गुड्स जो रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे ऐसे लेस कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न. इफ देयर इज एनी सेल्स रिटर्न गिवन इन द क्वेश्चन, वो हम माइनस कर देंगे एंड वी विल राइट इन द फिनिश गुड्स. हम यहाँ पे दिखा रहे फिनिश गुड जो सेल हुआ है. और इसके बाद इफ देयर इज एनीथिंग कॉल्ड बाय गुड्स, अवर फिनिश गुड्स जो है बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या फिर हमारा गुड्स कुछ टेकन बाय प्रोप्राइटर है, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, थेफ्ट है. और इसके बाद बाय गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, टेकन बाय प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, एंड ओनर जो गुड्स को लेके जाता है उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं. करेक्ट? पर्सनल यूज या टेकन फॉर पर्सनल यूज भी लिख सकते हैं. टेकन बाय प्रोप्राइटर डिफिकल्ट लगता है तो बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बोल सकते हैं. और एनीथिंग एल्स बाय गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. ये एडवर्टाइजमेंट करके हम P&L अकाउंट में दूसरा इफेक्ट में बताते. करेक्ट? तो ये सब चीज इधर लिखा, टेकन फॉर पर्सनल यूज, डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल. सो ये सब होने के बाद एक और चीज यहाँ पे बचा हुआ है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इट? बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. अभी तक लिखा नहीं है ना फिनिश्ड गुड्स के बारे, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में. नाउ वी विल क्लोज दिस. ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं तो क्या मिलता है? व्हेन यू क्लोज योर ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट डू यू गेट? अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट. इफ द क्रेडिट साइड इज हैवी, सपोज ये क्रेडिट साइड हैवी है तो क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. If the credit side is heavy, we get gross profit. But if the debit side is heavy, हमें क्या मिलता है?
अगर डेबिट साइड हैवी है ट्रेडिंग अकाउंट का, सो हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस कैरीड डाउन. If the credit side, because I told you trading account is also a nominal account. Credit और credit मतलब incomes होता है, incomes and gain. अगर credit side ज्यादा है means it is a profit. और अगर debit side, debit और expenses and losses, अगर debit ज्यादा है मतलब expenses ज्यादा है तो loss हो जाएगा gross loss. और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है मींस क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन मींस इनकम्स एंड गेन ज्यादा है तो क्रेडिट ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस. दोनों नहीं आ सकता, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा. बट बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट, I have taken both the things, gross profit also and gross loss also. With this format of trading account also is done. So with this, I will end the lecture. Thank you very much, everyone.